So hello students, today we are going to start second chapter of class 6 geography and the name of the chapter is landforms. Okay. But before starting this video, let me tell you, many students are commenting that sir, please teach us from books, not from whiteboard. But dear students, let me tell you, whatever I am teaching you on the whiteboard, all these are content that present in your book only, same syllabus only, so don't get confused. But for your kind information, let me tell you, I am following this book, Goel Brothers Prakashan book. Okay, so if you are studying this book, or if you are following this book, then well and fine. And if you are not following this book, then also there is not an issue. Okay, because syllabus is same only. So without wasting time, let us begin our chapter. Okay, dear students, you know that our earth is covered by water and land, right? If you see our earth, then 79% of the earth surface is covered by water and 21% of the earth surface is covered by land. Since most of the areas of the earth surface is covered by water, so that is why it is called blue planet. Which planet? Blue planet. Now if we see our earth on the basis of the hemisphere, especially we will see here northern and southern hemisphere. So if you see on the northern hemisphere, then on the northern hemisphere you can see more land mass or more land are there. So that's why northern hemisphere is known as land hemisphere. Okay, similarly if you come to the southern hemisphere, then southern hemisphere contains large areas of water bodies, means oceans and seas. Since it has large amount or large area of water, so that's why this is called water hemisphere. So land hemisphere is northern hemisphere and water hemisphere is southern hemisphere. Now we know that 21% of the earth surface is covered by land or land mass or continent. So these 21%, it means this land mass or these lands contains various physical features like mountain, plateaus, plains, valleys, etc. So these physical features are called landforms. Okay, so what are landforms? Landforms are nothing but they are the physical features found on the earth's surface. Okay, now how these physical features or these landforms are formed? कैसे बनते हैं ये सब? So students, there are two processes which formed the landforms or the physical features. They are first one is exogenic processes, or which is also called external processes, and second one is endogenic processes, which is also called internal processes. Okay, first we will see in this video exogenic processes, then in next video we will see endogenic processes. So let us see exogenic processes. So students, let us split this word exogenic. Okay, so exo means outer or the external. Okay, and genic means here origin, outer origin or external origin. So these processes are those processes which occurred on the outside of the earth. It means on the earth surface. यानी कि एक्सोजेनिक, एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब बर्थ, ओरिजिन ना, मतलब बाहर ओरिजिन होने वाली प्रोसेस, यानी कि बाहर एक्ट करने वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, या फिर वही एक्सटर्नल प्रोसेस. नाउ इट एक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस, और ये जो प्रोसेसेस है वो कहां पर एक्ट करते हैं? वो अर्थ के सरफेस पर करते हैं, यानी कि अर्थ के ऊपर, ना कि अर्थ के अंदर, ना कि अर्थ के इंटीरियर, ऊपर ऊपरी भाग में एक्ट करते हैं. ठीक. नाउ देयर इज वन टर्म डेन्यूडेशन. व्हाट इज डेन्यूडेशन? हम बात करते हैं, सबसे पहले एक टर्म को जान लेते हैं, डेन्यूडेशन. ठीक है, ये डेन्यूडेशन होता क्या है? सो डेन्यूडेशन एक ऐसा टर्म है जिसमें इंक्लूड होता है आपका वेदरिंग, इरोजन, उसके बाद डिपोजिशन. ठीक है, डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है? डेन्यूडेशन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रॉक्स को ब्रेक डाउन कर देना या फिर सोइल को ब्रेक डाउन कर देना, फिर उसको उस इलाका से, यानी कि उस एरिया से कैरी करके किसी दूसरे जगह पर लेके डिपॉजिट कर देना, उसे ही हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं. अब हम इससे ये कह सकते हैं
from here we can say that denudation includes weathering, erosion and deposition. We will learn it later. Okay, so this denudation has some agents. अब denudation कैसे होते हैं? अब denudation कैसे होते हैं? तो कोई करता होगा, कोई एजेंट्स होंगे. So who are the agents of the denudation? So agents of the denudation are rivers, glaciers, winds and waves. Rivers, glacier, winds and waves, ये सारे क्या है? ये सारे एजेंट्स हैं. ये सारे क्या करते हैं? ये डेनुडेशन होने में मदद करते हैं. ये सारे एजेंट्स ही रॉक्स को वेदर करते हैं, उसके बाद उसे इरोड करते हैं, फिर उसको कहीं ले जाकर उसे वहां पर डिपॉजिट कर देते हैं. सो हियर इट इज रिटन दैट देयर आर एजेंट्स ऑफ द डेनुडेशन. ओके, लाइक रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स एंड वेव्स. एंड दीज एजेंट्स ऑफ denudation means rivers, winds, glaciers and waves. All these agents only do exogenic process. ये सारे ही exogenic process करते हैं. चलिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं. So here you can see, suppose this is a mountain. Okay, this is a mountain. अब क्या हुआ? अब यहां से तेज हवा चलने लगी. ठीक है, तेज हवा चलने लगी. अब ये तेज हवा के कारण, because of this wind, these particles or these mountain are broke down and they rolled down like this. क्या हुआ? ये सारे ऊपर वाले जो रॉक्स है वो टूट गए. किस कारण से? तेज हवा चलने के कारण से. ठीक है, उसके अलावा क्या हुआ? इसका ऊपर बर्फ गिरा, बर्फ जम गया. अब ये जब बर्फ जो है नीचे फिसलेगा तो साथ में ये पहाड़ को भी, यानी कि ये जो चट्टान है, ये रॉक्स है, इसको भी तोड़ के नीचे आएंगे. ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ कुछ ऐसा बन जाएगा. ठीक है, और ये टूट टूट के क्या हो जाएगा? इसका जो पीक है छोटा बन जाएगा और धीरे धीरे एक समय आएगा कि ये क्या हो जाएगा? एक प्लेन में चेंज हो जाएगा. तो यहां पर आप देख सकते हो, पहले क्या था? ये एक पहाड़ था, पहाड़ का एक चोटी था. विंड्स, ग्लेशियर और रिवर या फिर कहीं वाटर के कारण से क्या हो गया? धीरे धीरे ये इरोड हो गया, वेदर्ड हो गया, फिर इरोड होते होते क्या बन गया? वो प्लेन बन गया. अब उसी तरह से हो सकता है कि इस पार्टिकल्स को विंड्स उड़ा के ले जाता हो कहीं और वहां पर एक पर्टिकुलर जगह पर इसको क्या कर देता हो? डिपॉजिट कर देता हो. तो डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा? यहाँ पर एक इस तरह से ऊंचा सा एक डिपोजिशन होने के बाद एक ऊंचा सा यहाँ पर पहाड़ बन गया और ये बन गया हमारा प्लेन. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ये रिवर्स, ग्लेशियर, विंड्स एंड वेव्स क्या करते हैं? ये किसी भी लैंडफॉर्म को चेंज करने में या फिर किसी भी लैंडफॉर्म को बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है या फिर बनाती है. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोजेनिक प्रोसेस. इसी को एक्सोजेनिक प्रोसेस कहा जाता है. इसी तरह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. देख सकते हो ये क्या हो रहा है? अर्थ सरफेस के ऊपर एक्ट कर रहा है कि नहीं? ये विंड था, ग्लेशियर आया, ये सारे एक्ट करते हुए ये जो प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस के बाद यहाँ पर क्या बन गया? प्लेन बन गया. क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करके, तोड़ के इसको किसी दूसरा जगह पर ले जाकर डिपॉजिट कर दिया. मान लीजिए इधर ले जाकर डिपॉजिट कर दिया और यहाँ पर बन गया एक छोटा सा पहाड़. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? लैंडफॉर्म फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पर पहाड़ था, माउंटेन था पहले, अब यहाँ क्या बन गया? प्लेन बन गया. अब यहाँ पर प्लेन था पहले. ठीक है, यहाँ पर क्या था? प्लेन था पहले और अब वहां पर क्या बन गया? पहाड़ बन गया. तो इस तरह से लैंडफॉर्म्स जो है फॉर्म होते हैं. और ये कौन बनाते हैं? ये बनाते हैं रिवर, ग्लेशियर, विंड्स एंड वेव. और इसीलिए इसे हम एजेंट्स कहते हैं. किसके? डेनुडेशन के. ठीक है, इट इज ए स्लो प्रोसेस एंड स्टूडेंट्स दिस एक्सोजेनिक प्रोसेस इज नॉट ए सडन चेंज और नॉट ए सडन प्रोसेस. इट इज स्लो प्रोसेस. इट टेक्स long period of time. It takes thousand and thousand years and it takes million and million years. अब ऐसा नहीं होगा कि आज यहाँ पर पहाड़ था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था? प्लेन्स थे. ठीक है, तो कल का दिन क्या हुआ? यहाँ प्लेन बन गए और यहाँ पर पहाड़ बन गया. ये इस तरह से नहीं होगा. ये कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में नहीं होगा. इसके लिए टाइम लगेगा. इसके लिए कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम, बहुत समय लगेगा. थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स, सम टाइम मिलियन एंड मिलियन ईयर्स. ओके, नेक्स्ट, as changes take place on the surface of the earth so it can be observed. अब ये सारे चेंजेस कहाँ हो रहे हैं? ये सारे चेंजेस हो रहे हैं अर्थ सरफेस पर. तो ये चेंजेस अर्थ सरफेस पर हो रहे हैं, इसीलिए we can observe it, we can see it. हम उसे देख सकते हैं, हम उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है,
नाउ 3 टाइप्स ऑफ एक्सोजेनिक प्रोसेस। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस के भी 3 टाइप होते हैं। मैंने आपको यहां पर बताया था एक्सोजेनिक प्रोसेस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप वेदरिंग, दूसरा है इरोजन, तीसरा है डिपोजिशन। ठीक है, अब समझते हैं इसका डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग, इरोजन एंड फर्स्ट लेट अस सी वेदरिंग। वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, water, glacier, waves, etc. It means due to the agents of the denudation. That is called weathering. Okay, weathering is breaking down of the rock due to the action of the agents of the denudations. Okay. Next we have here erosion. Erosion means taking those broken pieces of rocks after weathering from that place to another place due to the action of the agents of the denudation. It means river, wind, glacier and waves, etc. Okay, that is called erosion. And deposition. Deposition means depositing that eroded rocks particle to a particular place. That is called deposition. समझ में आ रहा है ना? वेदरिंग मतलब रॉक्स का ब्रेक डाउन हो जाना, रिवर के कारण से हो या फिर विंड का कारण से हो या फिर ग्लेशियर के कारण से या फिर वेव्स या फिर किसी भी एजेंट के कारण से हो। अब इरोजन मतलब वो जो ब्रेक डाउन हो चुका है, वो जो रॉक वेदर्ड हो चुके हैं, उसको उस जगह से उठाकर किसी दूसरे जगह को ले जाना, हम उसे क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं। और इरोजन कौन करता है? एजेंसी करते हैं। इरोजन कौन करता है? रनिंग वाटर, विंड्स करते हैं, ग्राउंड वाटर करते हैं, ग्लेशियर करते हैं, वेव करंट्स, ये सारे इरोजन का काम करते हैं। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन का मतलब होता है कि वो इरोडेड पार्टिकल किसी एक जगह पर, पर्टिकुलर प्लेस पर ले जाके वहां पर डिपोजिट कर देना। अब ये काम भी कौन करता है? रनिंग वाटर, विंड्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स, ये सारे ये काम करते हैं। ठीक है, अगर हम वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग हमारा होता है 3 टाइप्स का। एक होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग आर दोस वेदरिंग which is done by the river, glacier, winds and waves. ठीक है, जब winds, rivers ये सारे क्या करते हैं? वेदर्ड करते हैं, किसी रॉक को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसी को हम फिजिकल क्या कहते हैं? फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव हियर केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मींस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सम केमिकल लाइक ऑक्सीडेशन, यानी कि किसी केमिकल का कारण से, किसी केमिकल की वजह से जब रॉक्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। एंड थर्ड वन वी हैव हियर बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक ड्यू टू एक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स।